السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوری ورلڈ A.N۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اسٹوری ورلڈ A.N کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ ندیم کی سہاگ رات تھی جسے لوگ مرادوں والی رات کہتے ہیں، لیکن یہ کیسی عجیب بات تھی کہ آج ہی اسے رات سے پہلے یہ گھر خالی کرنا تھا جس میں اس کے نئی نویلی دلہن کے قدم آئے تھے۔ یہ رات گھونگھٹ اٹھا کر پیار بھری باتیں کرنے کی تھی۔ واری قسمت یہ کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ندیم کے والدین زندہ ہوتے تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خالہ نے اس کی پرورش کی تھی، پرورش کا احسان جتانا تو بھی سود تھا، کیونکہ خالہ نے ندیم سے ایک پائی کا حساب رکھوا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی پر ہونے والی اخراجات کا حساب بھی چکتا کرنے کے بعد مزید دولت ہتھیانے کی فکر میں تھی۔ ندیم نے لاکھ سمجھایا اور بہت سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، مگر خالہ کی ہٹ درمی قائم رہی۔ آج تو اس نے نئی نویلی دلہن کا جہیز ضبط کر کے اعلان جنگ کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رات سے پہلے مکان خالی کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ رشتہ داروں نے بھی لاکھ سمجھایا، مگر خالہ کے ذہن میں زیورات اور جہیز کے سامان پر قبضہ کرنے کا بھوت سوار تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بالآخر وہ خالہ کی لڑائی سے تنگ آ کر کرائے کے مکان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی گلیوں اور مختلف محلوں میں معلومات کی، مگر کوئی بھی مکان خالی نہ مل سکا۔ آخرکار پیپل والے مکان کی نشاندہی کی گئی جو عرصہ دراز سے خالی تھا۔ یہ پیپل ایک درخت کا نام ہے اور اس مکان میں پیپل کا ایک بہت بڑا درخت تھا، جس کی نسبت سے لوگ اسے پیپل والا مکان کہتے تھے۔ ایک عورت نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس مکان میں کسی جن کا اثر ہے۔ ندیم ان باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا، کیونکہ انہیں اس قسم کی مخلوق سے کوئی خوف نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس کا واسطہ آج تک اس قسم کی مخلوق سے پڑا ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ تلاش کرتا ہوا اس مکان تک جا پہنچا۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، شاید اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ندیم نے دروازے پر دستک دی تو پہلے ہی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ دروازہ کھولنے والا ایک عمر رسیدہ شخص تھا جس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے بھوؤں کے بالوں نے اس کی آدھی آنکھیں ڈھانپ رکھی تھی۔ جھریوں سے اس کا چہرہ اس کی عمر کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی عبارت سے پتہ چلتا تھا کہ بوڑھا زمانہ شناس شخص ہے۔ جی، میرا نام ندیم ہے، مجھے کرائے پر مکان چاہیے۔ تمہارے ساتھ کون رہے گا؟ پر جناب، میری شادی آج ہی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر آج ہی اس مکان میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ اور مکان دیکھ لو۔ شکریہ، ندیم نے مکان کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا، جس کے سامنے کچن، باتھ روم اور واش روم علیحدہ بنائے گئے تھے۔ صحن کے وسط میں آدھی طرف دیوار کھڑی کی گئی تھی، جس کے اطراف وہ پیپل کا درخت تھا، جس کی وجہ سے اس گھر کا نام پیپل والا مکان پڑ گیا تھا۔ درخت واقعی تناور اور اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس کی شاخیں مکان سے باہر دیواروں پر جھوم رہی تھی۔ اس مکان کا کرایہ کتنا ہوگا بابا جی؟ ندیم نے پیپل کے درخت کی اونچائی پر نظر کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب نہ پایا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مکان میں تنہا کھڑا تھا اور وہ بوڑھا غائب ہو چکا تھا۔ ندیم گھبرا کر تیز قدموں سے دروازے تک آیا۔ کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے بابا جی؟ میرا مطلب ہے مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تم ہمارے نئے مہمان ہو اور کرایہ دار بھی، اس لیے تمہارے لیے چائے لینے گیا تھا میں۔ بوڑھے نے چائے کی کیتلی اور 2 کپ فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ ندیم حیران تھا کہ بوڑھا دبے پاؤں کہاں اور کیسے گیا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی اور پھر پلک جھپکتے میں چائے کہاں سے لایا۔ حالانکہ جب وہ مکان کی تلاش میں گلیوں کی خاک چان رہا تھا تو اسے دور دور تک کوئی چائے کی دکان یا ہوٹل نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ علاقہ گنجان آباد نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو بھائی؟
कुछ नहीं, आप मुझे इस मकान का किराया तो बताएं। एक बार फिर नदीम ने पीपल के दरख्त को देखते हुए कहा। 1000 रुपये माहाना, उसने नदीम के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, जैसे वो उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाना चाह रहा हो। मुझे मंजूर है, आप चाबी दे दें। मैं 1 घंटे बाद ही इस मकान में अपनी बीवी को लेकर आऊँगा। ये लो चाबी और एडवांस की रकम। नदीम ने दाएं हाथ से चाबी लेते और बाएं हाथ से रकम देते हुए रुखसत होने की इजाज़त चाही। ठीक है, तुम सामान ले आओ, मैं चला जाता हूँ, बूढ़े ने ताला उठाते हुए कहा। जी, सामान तो कुछ नहीं है, बस दोनों मियाँ बीवी ही चले आएंगे। नदीम ने शर्मिंदगी से नज़र झुकाते हुए कहा। तो क्या जहेज़ का सामान नहीं मिला? जी मिला तो था, मगर खाला अम्मी ने अपनी मेहनत और मोहब्बत की सिले में ज़ब्त कर लिया। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हें जल्द आना भी है। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ पूछो ना, क्या बात पूछनी है? मैंने तो सुना था कि इस मकान में अरसे दराज से कोई शख्स रिहाइश पजीर नहीं है। फिर इस मकान में इस कदर सफाई सुथराई का इंतज़ाम किसने किया है? दीवारों का प्लास्टर कहीं से भी उखड़ा हुआ नहीं है, दीवारों का रंग सही सलामत है, ऑयल पेंट इस तरह चमक रहा है जैसे आज ही किया हो। ज़मीन का फर्श भी कहीं से टूटा फूटा नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। दरअसल तुमसे कुछ दिन पहले एक फैमिली ने ये मकान पसंद किया था, उन्होंने ही इसकी मरम्मत वगैरह का काम करवाया है। उनके किसी अजीज़ का गांव में इंतकाल हो गया था, लिहाजा वो रिहाइश इख्तियार करने से पहले ही वहां चले गए, इसलिए मकान तुम्हें अच्छी हालत में मिल गया है, बूढ़े ने बात बनाते हुए कहा। नदीम जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुरम्मत के आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मकान की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने इसे चंद दिन पहले ही तामीर किया हो, जबकि बाहर से वो सूरत दिखाई ही नहीं दे रही थी। बहरहाल नदीम अल्लाह हाफिज कहकर चलता बना। उसे तो आम खाना था, गुठलियाँ तोड़ी कि न थी। नदीम ने नई नवीली दुल्हन को मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये कैसी किस्मत थी कि जो उसे सुहाग रात अजनबी मकान और इंतहाई नए माहौल में गुजारना थी। बहरहाल रुखसत होती हुई उसने खाला अम्मा से मुसाफा करना चाहा तो उसने नफरत से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। नदीम ने भी माफ़ी तलाफी चाही थी, मगर कोई जवाब ना मिला। वो दोनों तन के कपड़ों में खाला अम्मा के घर से रुखसत होकर अपनी बदनसीबी के साथ नए मकान में मुंतकिल हो चुके थे। समर को इस मकान के पुरस्रार माहौल से खौफ आ रहा था। उसकी उम्र बहुत कम थी, या वो छोटे दिल की मालिक थी। इस मकान में हूँ का आलम था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। ये भी अजीब बात देखने में आई थी कि हर दरख्त पर परिंदों की चहचहाहट होती है, लेकिन पीपल के इस दरख्त पर चिड़िया का बच्चा भी नहीं था। हाँ, 1-2 मुर्दा परिंदों की जिस्म वॉशरूम की छत पर जरूर पाए गए थे। समर को ये माहौल बड़ा खौफनाक लगा था। सूरज गुरूब हो चुका था, दिन की रोशनी को सियाह रात ने अपनी काली चादर ओढ़ा दी थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उनके जवान जज्बों ने अंगड़ाई लेना शुरू की। इस तारीकी में उनकी उम्मीदों की शमें जलने लगे। जज्बात की रो में बहती हुई रात में भी दिन का समा लगने लगा। समर ने लिबास अरूसी का लंबा छोड़ा दुपट्टा चादर बनाकर जमीन की सेज पर बिछा दिया। नदीम के जिस्म का लम्स पाकर उसका खौफ व हरास कुछ कम हुआ। इससे पहले कि वो जज्बात के तूफान में बह जाते, नदीम के मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजी। नदीम ने फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने देना, न जाने इस वक्त किसका फ़ोन है। समर ने एक अनजाने खौफ को महसूस करते हुए इल्तिजा की। समर, हो सकता है फ़ोन अस्पताल से आया हो, कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, मुझे बात तो कर लेने दो। फ़ोन कहीं से भी हो, आप रहने दो ना प्लीज़। समर ने फ़ोन को मज़ीद दूर सरकाते हुए कहा। अच्छा भाई, मुझे नंबर तो देख लेने दो ताकि पता तो चले कि फ़ोन कौन कर रहा है। समर की हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी तो उसने अपना हाथ छुड़ाकर मोबाइल ऑन किया। कॉल अभी तक मौजूद थी। हेलो, मैं डॉक्टर नदीम बोल रहा हूँ। सर प्लीज़, आपको एमए साहब ने फ़ौरन बुलाया है। हमारे अस्पताल के सामने वाले रोड पर बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया है,
काफ़ी जानी नुकसान होने का अंदेशा है, आप जल्द अज जल्द आ जाएं। नदीम ने फ़ोन बंद किया और तैयार होते हुए कहा, माफ़ करना समर, मुझे हस्पताल जाना होगा वरना कई जानें ज़ाया हो सकती है। नदीम, मेरा क्या बनेगा इस अंधेरी रात में और इस पुरस्कार माहौल में? मैं तो खौफ व दहशत से ही मर जाऊंगी। समर ने नदीम के छोड़े सीने पर सर टिकाते हुए कहा, समर तुम भी मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें किसी वार्ड में ठहरा दूंगा। ये बात नदीम ने बगैर सोचे कही थी। नहीं नहीं, मैं इस दुल्हन के लिबास में कहीं भी नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। अच्छा समर, समझने की कोशिश करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, इंसानी जानें बचाना मेरा फ़र्ज़ है। तुम डरो मत, मैं जल्द फुर्सत पाते ही वापस आ जाऊंगा। ज़रा सी देर से जाना भी भारी जानी नुकसान का बायस बन सकता है, तुम अंदर से खुंडी लगा लो। नदीम ने उसके माथे को बोसा देते हुए कहा। समर ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की। समर प्लीज़, इंसान की ज़िंदगी सबसे कीमती शे है ना, और फिर मैंने तुम्हें शादी से पहले ही समझा दिया था कि मेरा पेशा ऐसा ही है, मैं तुम्हें अपने पेशे पर कभी तरजीह नहीं दूंगा। नदीम के इन दलाइल ने उसे लाजवाब कर दिया था। वो चुपचाप खुंडी लगाकर ज़मीन पर आ बैठी। वो काफ़ी देर तक ना जाने क्या क्या सोचती रही। फिर उसे ख्याल आया कि नदीम की नौकरी भी तो नई नई और डेली वेजेस की है, अगर ना जाते तो कहीं नौकरी से निकाल ना दिए जाते। तब उसके दिल को ढारस मिली, क्योंकि अब तो उसे मकान को घर बनाने और उसे बसाने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी, और इतनी बड़ी रकम सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से ही हासिल की जा सकती थी। रात का पिछला पहर बीत रहा था। समर की आंख ना जाने किस तरह लग गई। 1 घंटा भी ना गुजरा होगा कि सहन में किसी चीज़ के गिरने की मध्यम सी आवाज़ आई तो उसकी आंख खुल गई। रात का अंधेरा, तन्हाई का खौफ और इस पुरस्कार माहौल में धम की आवाज़ ने उसकी नींद उड़ा दी थी। पहले तो वो समझी कि शायद सहन में बिल्ली कूदी है, मगर दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, क्योंकि बैरूनी दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई थी। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई शख्स दीवार भांगकर अंदर दाखिल हुआ है। हो सकता है कोई चोर हो, क्योंकि चोर ही सबसे पहले अपने भागने का रास्ता तलाश करता है। लिहाजा चोर ने भागने के लिए ही बैरूनी दरवाजे की कुंडी खुली होगी। चोर का जहन में ख्याल आते ही वो थर थर कांपने लगी। ये खौफ तो नहीं था कि चोर माल चोरी करेगा, क्योंकि माल तो था ही नहीं। हाँ, उसे अपनी जान और इज्जत का डर था, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बढ़कर इज्जत ही प्यारी होती है। उसने चीखना चाहा, मगर वो ये सोचकर चुप हो गई कि मोहल्ले में तो कोई उसे जानता भी नहीं है, और फिर इतनी रात गए, इस पुरस्कार मकान में उसे बचाने कौन आएगा। सहन में उसे कदमों की आहट महसूस होने लगी। कोई था जो दबे पांव चलकर वॉशरूम तक गया था। अब तो खौफ से उसका बुरा हाल हो गया। उसने हिम्मत को यकजा किया और ये सोचकर उठ खड़ी हुई कि यूं तो खौफ से ही दम निकल जाएगा, जब मरना ही है तो क्यों न मुश्किलात से लड़ा जाए। उसके कदम वजनी हो गए। जैसे तैसे वो सहन की तरफ बढ़ी। 2 कदम चली थी कि उसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आई। अब तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दहशत से उसकी आंखें फट गई। समझ में कुछ न आया तो वो वही ज़मीन पर दीवार के सहारे बैठ गई और घुटनों में सर देकर सारों कतार रोने लगी। किसी के कदमों की चाप पर उसने सर उठाया तो देखा कि एक साया दरख्त के नीचे से गुजरता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा है। अब तो उसके हलक से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका गला दबा रखा हो। खौफ से उसकी आंखों में दम आ चुका था। कलेजा था कि जो बार बार मुंह को आ रहा था। एक वजनी हाथ उसके कंधे पर रखते हुए किसी ने सरगोशी की। समर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपना नाम सुनकर उसे हौसला मिला तो उसने अपनी आंखें खोल दी। सवाल करने वाले को उसने पांव से ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया। आवाज़ भी जानी पहचानी थी। चेहरे पर नज़र पड़ी तो उसे अंधेरे में भी पहचानने में ज़रा भी देर ना लगी कि नदीम उसका बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। नदीम, उसने रोते हुए उसके शाने पर अपना सर टिका दिया। क्या बात है समर,
तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो और यहाँ सहन में क्यों बैठी हो? रोने का सबब क्या है समर? तो ये तुम थे? मेरी तो खौफ से जान ही निकल गई थी। समर ने अपना नाजुक वजूद उसकी मजबूत बाहों में देते हुए शिकवा किया। हाँ, मैंने कई बार दस्तक दी थी, तुम गहरी नींद सो रही होगी। दस्तक की आवाज़ पर बेदार ना हुई तो मैं दीवार भांगकर घर में दाखिल हुआ। मैंने सोचा मैं वॉशरूम की ज़रूरत से फारिग हो जाऊं तो तुम्हें जगाऊंगा, लेकिन इससे पहले शायद तुम्हारी आंख खुद खुल गई और तुमने खुद पर इस दर्जा डर सवार कर लिया। तुम दीवार बांधकर अंदर आए हो तो बिरोनी दरवाजे की कुंडी किसने खोली? अरे मैंने देखने के लिए कुंडी खोली थी कि गली में किसी ने मुझे दीवार बांधते हुए तो नहीं देखा, लेकिन तुमने फिर कुंडी क्यों खुली छोड़ी? अरे छोड़ो समर इन बातों को, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर डरपोक हो। वो समर को छोड़कर फर्श पर आ बैठा था। अच्छा नदीम, अस्पताल के मुतालिक बताओ, हादसे में जानी नुकसान तो नहीं हुआ कोई? आपकी खिदमत कुछ काम आई? समर ने उसे मनाने की कोशिश में मौजू बदला। समर, आज हमारी सुहाग रात है और तुम क्या बातें लेकर बैठी हो? तकदीर ने पहले ही हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और रात का ये आखिरी पहर भी तुम फजूल बातों में बर्बाद करना चाहती हो। नदीम का अफसरदा लहजा सुनकर वो खामोश हो गई। नज़रों के साथ साथ उसने अपना सर भी झुका लिया। नदीम ने उसकी तरफ नज़र की तो वाकई वो उसे दुल्हन के रूप में नज़र आई। इस बार उसे समर पर बेहद प्यार आया। उसने दाएं हाथ की उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर तो प्यार का एक बला खेज तूफान उमड़ आया और दोनों को जज्बात की तेज रो मौजों में दूर तक बहा ले गया। उन्हें याद ना रहा कि वो जिंदगी का मजा लूटकर नींद की आगोश में कब गए थे। इस बार दरवाजे पर दस्तक इस जोर से दी गई थी कि दरवाज़ा ना खोला जाता तो तोड़ दिया जाता। इस जोरदार आवाज़ से समर की आंख खुली तो वो नदीम को टटोरने लगी, मगर उसने कमरे में खुद को तन्हा पाया। वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। वो सोच रही थी कि अगर नदीम उसे इस बेहिजाबी में सोता अकेला छोड़कर बाहर गया था तो अंदर से कुंडी किसने लगाई थी? अगर नदीम घर में मौजूद है तो ये दरवाजे पर कौन है? इस दस्तक देने वाले ने समर का नाम भी पुकारा था। आवाज़ तो नदीम ही की थी, लेकिन मामला उसकी समझ से बाहर था। एक बार फिर दहशत ने उसे आ लिया। उसने पुरखुमार आंखों से दरवाज़ा खोल कर देखा तो नदीम खड़ा मुस्कुरा रहा था, मगर उसके चेहरे पर थकन के असरात नुमाया थे। आप फिर दीवार बांधकर बाहर चले गए और मुझे बताया भी नहीं। यूं बेखबर सोता छोड़कर चले गए आप मुझे। लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया जिसमें कोई बार बार दीवार बांधकर अंदर आ रहा होगा। नदीम ने उसके फूल जैसे गुलाबी गाल पर चुटकी लेते हुए कहा। नदीम कमरे में आकर डॉक्टरों वाला सफ़ेद ओवरकोट उतार रहा था और समर पर यह ख्वाब वाला जुमला क़यामत बन के टूट पड़ा था। उसने अंगड़ाई ली तो उसके जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। दर्द की मीठी मीठी डी से उसे अभी तक लुफ्त सुरूर से तरशार और हमकनार कर रही थी। वो एक खिलता हुआ फूल बन चुकी थी। कहीं भी पड़े हुए शीशे के टुकड़े में उसने अपना चेहरा बखौर देखा तो बालों का बिखर कर उलझ जाना, मेकअप का फीका पड़ जाना, चूड़ियों के टुकड़े होना, ये सब क्या था? अगर बकौल नदीम मैंने डरावना ख्वाब देखा है तो क्या ख्वाब के असरात सबूत के तौर पर सामने मौजूद होते हैं? हरगिज़ नहीं। तो फिर ये सब क्या था? वो नदीम था तो ये कौन है, और ये नदीम है तो वो कौन था? इन सोचों का बोझ उसके हल्के जहन से बर्दाश्त ना हो सका। वो चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। नदीम ने बमुश्किल उसे ज़मीन से बाहों में उठाया। उसका नीम मुर्दा जिस्म लचकदार शाख की तरह डोल रहा था। नदीम ने उसे आहिस्तगी से फर्श पर लिटाया। उसके चेहरे पर पानी की छींटे भी मारे, मगर होश न आ सका। अब तो नदीम भी घबरा गया। उसने समर को मसनूई सांस देने की कोशिश भी की, मगर बेसूद। तब उसे न चाहती हुई भी समर को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेडी डॉक्टर के चेक करने से पहले ही नदीम ने बता दिया था कि हमारी सुहाग रात थी। वैसे भी दुल्हन को लाल जोड़े में सभी पहचान गए थे। मुश्किल से होश आने के बाद लेडी डॉक्टर ने इस शर्त पर डिस्चार्ज किया था कि वो समर को 1 हफ्ते तक आराम करने देगा।
ندیم میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے ندیم سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ پر مجھے بتاؤ تو سمر، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں جب سے گھر لوٹا ہوں تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، تم مجھے پاگل کہو یا کچھ بھی، بس میں نے کہہ دیا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے عورتوں والا ضد کرتے ہوئے کہا۔ سمر اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے ساتھ ناقابل فراموش اور ناقابل یقین واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی غیر مرئی شے اس کے شوہر کی روپ میں اس کے نفس کی مالک بن سکتی ہے۔ سمر، کیا یہاں ہسپتال سے باہر کھڑے رہ کر ساری باتیں کرنی ہے؟ چلو گھر چل کر فیصلہ کرتے ہیں، مالک مکان کو چابی دے کر اپنا ایڈوانس واپس لے لیتے ہیں، پھر مزید کچھ سوچیں گے، ندیم نے رکشے والوں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو کر ندیم کے ساتھ رکشے میں سوار ہو چکی تھی۔ رکشہ این پیپل والے مکان کے دروازے پر آ رکا۔ ندیم، کیا تم گھر کو تالا لگا کر نہیں گئے تھے؟ سمر نے ایک بار پھر اسے اس گھر کی پر اسراریت کے متعلق اشارے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ تالا لگا کر گیا تھا، چابی بھی میرے پاس ہے، ندیم نے چونکتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر سمر کا وہم یقین میں بدل گیا تو اس کے اعصاب اور ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا، لہٰذا اس نے بہانہ بنایا۔ سمر، تم بے ہوش ہو گئی تھی نا، ہو سکتا ہے میں گھبراہٹ میں یا جلد بازی میں تالا لگانا بھول گیا ہوں گا، ندیم نے رکشے کا کرایہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ رکشے والا جا چکا تھا، سمر اس مکان کے سائے سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ندیم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اندر سے کھنڈی لگا دی گئی ہے، لہٰذا اس نے زور سے دستک دی، کیونکہ اب تو اسے بھی شک ہو گیا تھا کہ مکان میں کوئی مافوق الفطرت طاقت موجود ہے جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کا سائے کی طرح پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے دن کی طرح پہلے ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ندیم کو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ اس بار دروازہ کھولنے والا وہ بوڑھا نہیں تھا، بلکہ سمر سے بھی حسین و جمیل کوئی دوشیزہ تھی۔ اس لڑکی نے بھی بڑی دل فریب مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ آپ ندیم ہیں نا، ہمارے کرایہ دار؟ لڑکی نے ندیم کا سکتہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ نسوانی آواز سن کر سمر بھی اس کے قریب چلی آئی۔ سمر کو دیکھ کر اس خوبصورت لڑکی نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جی ہاں، میں ندیم ہوں، لیکن آپ کون؟ میں مسکر بابا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، میرا نام رشنا ہے، بابا نے مجھے آپ لوگوں کے لیے ناشتہ دے کر بھیجا ہے، رشنا نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے بتایا۔ اس لڑکی یعنی رشنا کی باتوں سے ان کی معلومات میں یہ اضافہ ضرور ہوا تھا کہ بوڑھے مالک مکان کا نام مسکر ہے، وہ شادی شدہ اور اہل و عیال والا ہے۔ رشنا اور مسکر کے نام سے یہ بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ شاید وہ غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نئی نویلی دلہن کو کہاں لے کر گئے تھے؟ اس سرخ لباس میں صبح سویرے ہی؟ میں کافی دیر سے گھر میں موجود ہوں، کیا آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو تالا بھی لگا کر نہیں جاتے؟ ایک سانس میں اتنے سارے سوال سن کر وہ دونوں اس کا منہ دیکھتے رہ گئی۔ رشنا، ہمیں اس مکان میں نہیں رہنا، ہم تمہارے بابا کو اس مکان کی چابی دینے اور اپنا ایڈوانس واپس لینے آئے ہیں۔ سمر نے ایک خطرے کے بعد دوسری خوبصورت فتنے سے بچنے کے لیے دو ٹوک بات کی۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے گراؤنڈ کے اس پار وہ سفید رنگ والا مکان ہے نا، وہ ہمارا ہی مکان ہے، آپ بابا کو چابی دے آئیں اور اپنا ایڈوانس لے آئیں، جب تک میں آپ کی دلہن کا دل بہلاتی ہوں، رشنا نے اپنی بات سے دونوں کے دلوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ سمر، میں ابھی آتا ہوں، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ نہیں، آپ کے آنے تک رشنا میرے پاس ہے، اور پھر دوسرا مکان کرائے پر لینے کے لیے بھی تو ایڈوانس کی رقم کی ضرورت پیش آئے گی، آپ جلدی واپس آ جائیں۔ ندیم سمر کو رشنا کے پاس چھوڑ کر مسکر بابا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ آپ مکان کیوں خالی کرنا چاہتے ہیں؟ رشنا نے ان کے مہندی والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس مکان میں پیپل کے درخت سے بہت ڈر لگتا ہے،
दादी अम्मा ने बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी जिनसे ये साबित होता है कि ऐसे दरख्तों पर जिनों का बसेरा होता है। जिन किसी को कुछ नहीं कहते अगर उनको सताया ना जाए या उनके खिलाफ फितरत कोई बात ना की जाए। लेकिन मैंने तो किसी को सताया नहीं था ना। फिर तुम्हें भी किसी ने सताया नहीं होगा। हाँ, प्यार जरूर किया होगा। रचना ने समर के सियाह बालों से खेलते हुए कहा, ये कैसा प्यार है जिसमें इंसान की इज्जत ही लूट जाए और दहशत से जान ही चली जाए। जान प्यार ही में तो जाती है ना। रचना ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या तुमने सच्चे प्यार के वाकयात नहीं सुने? रचना ने उसका दुपट्टा एक तरफ रखते हुए कहा, जिनों से प्यार? हाय अल्लाह, उनकी तो सूरतें देखकर ही जान निकल जाती है। समर ने करायत से मुंह बनाते हुए कहा, अगर जिन खुश शक्ल होकर आए तो? रचना ने अपना मुंह उसके कान के करीब लाकर कहा तो गरम गरम सांस उसके कान की लों से टकराने लगी। इन सांसों का लम्स वही तो था जो वो कल रात अपने जिस्म में महसूस कर चुकी थी। इस ख्याल के साथ ही समर के रोंगटे खड़े हो गए। समर ने यकदम पलट कर देखा तो रचना की हियत बदल रही थी। वो औरत से मर्द बन रही थी। उसकी नुस्वानी आवाज़ मर्दाना आवाज़ में तब्दील होने लगी तो वो यूं मुखातिब होने लगा, समर, मैं रचना नहीं, तुम्हारा वही आशिक हूँ जो नदीम की रूप में तुम्हारे नफ्स पर इख्तियार हासिल कर चुका है। हम कोई भी रूप धार सकते हैं। समर, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। तुम अगर मुझे शोहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे दिल से तमाम हसरतें निकाल सकता हूँ। तुम्हें आजकल दौलत की ज़रूरत है ना, मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ, तुम्हें नोटों में तोल सकता हूँ। हर वक्त साई की तरह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। तुम्हें लज्जत व सुरूर की खुमार से हर वक्त सरशार रख सकता हूँ, सिर्फ इस शर्त पर कि अगर तुम मुझे शोहर के रूप में कबूल कर लो। तुम्हें जिनों की शक्लों से नफरत है ना, मैं हमेशा तुम्हारे सामने तुम्हारे महबूब नदीम की सूरत में ही आया करूँगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है ना? अगर तुम हाँ कह दो तो इस खुशी में मैं ये घर भी तुम्हें बख्श दूंगा। एक मुसलमान के पास जिनों से बचने का वाहिद हल कलाम इलाही के सिवा और क्या हो सकता है। जब तक उसके आशिक जिन ने अपना मौक़िफ़ बयान किया तब तक समर आयतुल कुर्सी और चारों कुल का विर्द करती रही। जैसे ही उसने अपनी बात का जवाब लेने के लिए खामोशी इख्तियार की, वैसे ही समर ने 10वीं बार आयतुल कुर्सी और चारों कुल का विर्द ख़त्म करके खुद पर फूंक लिया और अपने गिर्द हिसार कायम कर लिया। फूंक के साथ ही वो जिन बेबस और लाचार होकर पीपल के दरख्त पर जा बैठा। समर ने दहशत से उसकी शक्ल देखना गवारा ना किया। जिन अब गज़बनाक आवाज़ में गरजने लगा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम दौलत, मेरी मोहब्बत, जायदाद, नदीम और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठोगी। नादान लड़की, अगर तुमने मुझसे फ़रार की राह अख्तियार की तो मेरा खून जो अब तक तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वो तुम्हारे पाँव के तलवों से बहने लगेगा। तुमने अगर इस घर से कदम बाहर निकाले तो खून की नक्श सब्त होते जाएंगे। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। अगर फिर भी लौटकर मेरे पास ना आई तो तुम्हारे यही खूनी पाँव तुम्हारी जान ले लेंगे। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई आलिम फाजिल शख्स भी इसका इलाज नहीं कर सकता। मैं इस घर में आने वाली हर कंवारी लड़की पर यूं ही आशिक होता हूँ। वो मेरी बात नहीं मानती तो यही खूनी पाँव उसे कब्र में उतार देते हैं। जैसे ही समर ने बाहर से नदीम की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर घर से बाहर निकली, मगर फर्श और गली की सड़क पर उसके खूनी पाँव के नकूश बनते जा रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कांच के टूटे हुए टुकड़ों पर चल रही है। नदीम डॉक्टर होते हुए भी उसका मर्ज ना पकड़ सका। बिलाखिर अस्पताल जाते जाते समर के पाँव से इस कदर खून बह चुका था कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मगर हैरत की बात ये थी कि डॉक्टरों को लाख कोशिश के बावजूद भी उसके पाँव में जख्म नजर ना आ सके। नदीम ने अपनी नई नवीली दुल्हन की इस तरह की मौत पर पोस्टमार्टम करवाया
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ندیم پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی گئی ہے، جبکہ ندیم جانتا تھا کہ وہ اس رات ہسپتال میں تھا۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جنازہ اور اپنی نئی نویلی دلہن کی تدفین کے بعد ندیم نے پیش امام صاحب سے اس بات کا ذکر کیا۔ پیش امام صاحب نے اپنے دوست ایک عالم سے بات کی، جنہوں نے اپنے موکلات کے ذریعے ندیم کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا، لیکن ندیم اب دکھ اور افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔